آج ہم جو خدا کا کلام جو ہے جو سیکھیں گے اس میں جو ہے وہ ہم یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں. وائن ان دا بائبل ہم نے سیکھا. اس میں ہم نے پرانے عہد نامے میں جو ان سے دیکھا کہ وائن جو ان سے ہے اس کے کون سے الفاظ عبرانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور یونانی زبان میں جو ہے جب نیا عہد نامہ جو ان سے جس کو جو ہے وہ لکھا گیا، ترجمہ ہوا اس کے اندر کون سے الفاظ تھے وہ ہم نے سیکھے. آج ہم جو ان سے اسی سے ریلیٹڈ جو ان سے ہے وہ ایک ٹاپک جو ہے جو کہ بڑا اہم ہے. کین کرسچنز ڈرنک الکوہول اور آر کرسچنز الاؤڈ ٹو ڈرنک الکوہول اکارڈنگ ٹو دا بائبل، کہ کیا مسیحیوں کو بائبل مقدس جو ہے شراب پینے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. اس کو جو ہے سیکھنے کے لیے ہم جو ان سے پہلے ہم تھوڑا سا اس میں چند فیکٹس کے اوپر غور کریں گے کہ یہ جو دنیا میں جو جرائم کا جو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے یا جو جرائم سرزد ہوتے ہیں، اس میں جو سٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہے جو کہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی سٹیٹسٹکس ہیں، ان کے مطابق جو ان سے یہ شراب کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جتنے بھی جو ہے پبلک اوفینسز ہوتے ہیں 64% جو ان سے جو پبلک اوفینسز سرزد ہوتے ہیں یہ جو ان سے یہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وائلنٹ اسولٹس ہوتے ہیں، جو کہ کیا اس کہتے ہیں آپ کسی کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں، اس کو جو ان سے مار پیٹ جو کرتے ہیں 40% جو ان سے وہ نشے کی حالت میں ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہوموسائڈز ہوتی ہیں، جو یہ کیا اس کہتے ہیں قتل و غارت جو ان سے ہے، جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ 60 to 70% نشے کی حالت میں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں 70% سٹیبنگز جو ان سی ہیں 75% جو ہے وہ سٹیبنگز جو ہیں جو یہ چھرا وغیرہ مارا جاتا ہے یہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے. جب بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو 70% جو ان سے ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نشے کی حالت میں ہوگا. اس طرح وہ کہتے ہیں یہ جو مار کٹائی ہے یہ جو ان سے ہے اور لڑائیاں جو ہیں یہ 50% جو ہے یہ اس وقت ہوتی ہیں جب کیا اس کہتے ہیں کسی نہ کسی بندے نے اس وقت نشہ کیا ہوتا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں سینسز جو ان سے کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ جو ان سے لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو جاتا ہے. جب یہ سٹیٹسٹک جو ان سے ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ ایک کویسچن جو ان سے ہمارے سامنے ابھرتا ہے کہ کس طرح پاسبل ہے کہ کلام خدا جو ان سے ہے وہ اس پہ عمل کرنے والوں کو اس کی اجازت دے کہ وہ سوشل ڈرنک کر سکیں. بہت سارے جو مسیحی جو سوشل ڈرنکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں وہ مختلف جو ان سے وہ عذر پیش کرتے ہیں، مختلف آرگومنٹس پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کلام خدا کے اندر جو ان سے جو ایک موسٹلی آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں کہ مسیح خداون نے پانی کو میں تبدیل کیا. اور یہ جب ہم نے اس کو تفصیل سے سیکھا تھا کانے گلیل کا معجزہ تو اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ مسیح خداون نے جو پانی کو میں تبدیل کیا وہ فرمنٹڈ وائن نہیں تھی، وہ الکوہلک وائن نہیں تھی، وہ نان الکوہلک وائن تھی. یہ جنہوں نے کیا اس کہتے ہیں اس کو نہیں جو ہے سنا وہ دا فرسٹ میریکل جو ان سے جا کے یوٹیوب پہ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اسی طرح وہ ایک اور عذر بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پاک شراکت کے وقت جس کو مسیح خداوند کی عشاء ربانی کے طور پہ ہم جو ہے وہ مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک سمبل ہے کہ مسیح خداوند نے خود جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ میں استعمال کی. ہم یہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں آج اس کو کوشش کریں گے کہ سیکھیں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے سٹیبنگ میں جو ہے، کتنے پرسنٹ مرڈر میں، کتنے پرسنٹ وائلنس میں، کتنے پرسنٹ جو ان سے ہے
मुख्तलिफ चीजों में, लड़ाइयां झगड़ों में, होमिसाइड्स में जो है, जब नशे की हालत में इंसान होता है तो वो मुलव्वस होता है। अगर जो से खुदा ने अपने कलाम के जरिए, जो उसने अपने बंदों के जरिए हम तक मुंतकिल किया है, जो कि बाइबल मुकद्दस के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, अगर खुदा ने इसकी इजाजत दी है तो खुदा फिर डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है इन परसेंटेजेस के अंदर। एक बड़ा सीधा और कॉमन जो है अंडरस्टैंडिंग है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बता रही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वायलेंसेस जो हैं, एनी काइंड ऑफ वायलेंसेस जो है, उसमें जो इंसान मुलव्वस होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो नशे की हालत में होते हैं। उन्होंने ड्रिंक जो सी है, चाहे थोड़ी तादाद में चाहे ज्यादा तादाद में, जरूर की होती है। और अगर जो है कलाम खुदा जो है इसकी इजाजत देता है तो फिर खुदा जो है वो इन तमाम वायलेंसेस का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आज हम जो सीखेंगे इसको हम पैदाइश से लेकर मुकाशवे तक जो उनसे, उसमें मुख्तलिफ जो है वो हिस्से देखेंगे कि शराब या मैं, जो उर्दू में दो वर्ड ट्रांसलेट हुए हैं, और हमने इसमें देखा कि जब हमने वाइन इन द बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट और वाइन इन द बाइबल न्यू टेस्टमेंट को जो है मैं देखा, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो याइना वर्ड इस्तेमाल होता है, ये 141 मरतबा इस्तेमाल होता है। और ये वर्ड जो है ये अपने अंदर दोनों माने रखता है। ये नॉन फर्मेंटेड वाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है और फर्मेंटेड वाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और हमने सीखा कलाम खुदा के अंदर से कि आप याइना वर्ड जो पुराने नामे में इब्रानी ज़बान में वाइन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है या मैं के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको आप उसी सूरत में जो है वो सीख सकते हैं जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके देखेंगे कि वो जो है ये मतलब जो है, ये जो वर्ड है ये अपने अंदर क्या माने रखता है। क्योंकि ये वर्ड जो है, याइना जो वर्ड है, जिसको मैं जो उनसे वर्ड ट्रांसलेट किया गया उर्दू में, और जो है जिसको ट्रांसलेट किया गया वाइन इन इंग्लिश, वो जो उनसा है दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दोनों मीनिंग्स में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। एज अ जूस भी, ग्रेप जूस भी इस्तेमाल हुआ है, और एज अ एल्कोहलिक कंटेंट भी उसका मौजूद है। हम जो उनसे वो देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो उनसे जो खुदा का कलाम है, जिस पे मेरा और आपका ईमान है, ज्यादातर जो है कंडेमनेशन है उसके अंदर जब जब ये वर्ड वाइन का आता है। और ये सबसे ज्यादा रेफरेंसेस जो उनसे हैं कलाम खुदा में, वो इस वाइन के मुतालिक बाइबल में मौजूद हैं। बजाय झूठ के, इस बनिस्बत झूठ, स्वेरिंग, धोखाधड़ी, हिपोक्रेसी, प्राइड, इवन ब्लास्फेमी, ये वर्ड जो से हैं बाइबल मुकद्दस, इन पे कम जो से ये रेफरेंसेस हैं, और सबसे ज्यादा रेफरेंसेस जो से हैं वो वाइन के मुतालिक हैं बाइबल मुकद्दस में। हम देखते हैं पैदाइश की किताब 9 बाब उसकी 21वीं आयत में कि हजरत नूह जो है वो शराब पीते हैं। पैदाइश 9 बाब उसकी 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हजरत नूह शराब पीते हैं, और शराब पीने से क्या होता है, उनसे गुनाह सरजद होता है। हम पैदाइश 9 बाब उसकी 21वीं आयत में चलते हैं। पैदाइश की किताब 9 बाब और उसकी 21वीं आयत, और कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। आप देखें कि जब हज़रत नूह जो है वो नशा करता है
तो नशा जो उनसे उसके सेंसेस को पामाल कर देता है। और यही जो उनसे हमने पढ़ी स्टैटिस्टिक्स कि नशे की हालत में बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं। और ये खुदा का बंदा जो है ये जब नशा करता है, मैं का नशा, ये यहां पे जो वर्ड मैं इस्तेमाल हो रहा है ये याइना वर्ड है इब्रानी ज़बान का। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ड जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये उसके फर्मेंटेड कंटेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अल्कोहलिक जो उनसे कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अपने डेरे में बरहना होता है। हम जो उनसे एक और हवाले के अंदर देखते हैं कि लूत जो है वो जो है जब नशा करता है तो नशा करने से वो भी गुनाह का मुर्तकब ठहरता है। पैदाइश 19 बाब उसकी 32वीं आयत को हम देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। अब यहां पे आप कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं कि यहां पे जो वर्ड मैं इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड मैं जो है ये भी वो वर्ड है जो कि ये बताया जा रहा है कि ये ऐसी मैं है जिससे नशा जो है सरजद होगा। तो हमने जैसा कि पुराने नामे में सीखा था कि याइना वर्ड जो इंग्लिश में जिसको वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया और ओल्ड टेस्टामेंट में, और उर्दू में जो उनसे उसे मैं के तौर पे ट्रांसलेट किया गया, याइना जो वर्ड है इब्रानी ज़बान का अपने अंदर दो माने रखता है, ग्रेप जूस अनफर्मेंटेड वाइन एंड फर्मेंटेड वाइन, यानी कि अल्कोहलिक उसका कंटेंट। हम जो उनसे देखते हैं कि हजरत दाऊद जो है, जो किंग डेविड है, वो उससे भी गुनाह सरजद होता है। यह हम दूसरा सैमुएल 11वां बाब उसकी 13वीं आयत में देखते हैं। दूसरा सैमुएल 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत कलाम खुदा से जब हम देखें तो हम सीखते हैं, और जब दाऊद ने उससे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। यह आपको इल्म है कि जब वो उसे मैं पिलाई जा रही है, ये इसलिए पिलाई जा रही है ताकि वो अपने घर जाए और अपनी बीवी के साथ जो है हम आगोश हो, क्योंकि दाऊद नबी जो है जो गुनाह उससे सरजद हुआ है वो अपने गुनाह को छुपाना चाह रहा है। और दाऊद जहां पे ऊरिया को बुलाता है जंग से और उसे मैं पिलाकर मतवाला करता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं पीने से जो है इंसान अपने होशोवास खो बैठता है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा सैमुएल 13 बाब उसकी 28वीं आयत में जब आप चलते हैं तो अमून जो है ये भी जो है ये मैं का मतवाला होता है और मतवाला होने के सबब अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दूसरा सैमुएल 13 बाब उसकी 28वीं आयत आप देखते हैं। इसी तरह जो उनसे आप जो है दानियाल नबी को देखते हैं। अब दानियाल नबी जो उनसे है ये पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में चलते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। दानियल नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी हम 8वीं आयत को जो है मुतालिया करते हैं। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। तो कलाम खुदा आपको क्या बता रहा है, इसलिए उसने ख्वाजा सुराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। तो आप देख रहे हैं कि कलाम खुदा आपको क्या बता रहा है। हमने चंद हवाले पढ़े जहां पे मैंने क्या किया,
जब उन्हें पी गई, उन पे मदहोशी हुई और उनसे गुनाह सरजद हुआ। और यहां पे आप देख रहे हैं दानियल नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत में, तो वहां पे कलाम खुदा ये बता रहा है कि दानियल नबी जो है वो मैं नहीं पीना चाहता, वो बादशाह के साथ जौन सा है, जो बादशाह मैं पीता है उसे नहीं पीना चाहता, ताकि वो क्या ना हो, अपने आप को नापाक ना करे। तो कलाम खुदा तो आपको ये सिखा रहा है कि मैं जौन सी है वो आपको क्या कर रही है, नापाक कर रही है। अगर मैं आपको जो है कलाम खुदा के मुताबिक नापाक करती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कलाम खुदा आपको जो है इसको पीने की इजाजत दे रही हो? सोशल ड्रिंकर्स जो उनसे हैं वो इस लबादे में अपने आप को, क्योंकि उन्होंने पीनी है, वो हीले बहाने वो ढूंढते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी आयत उन्हें मिल जाए जिसका वो सहारा लेकर अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सके। जबकि दानियल नबी जो है वो इज्तनाब करता है, वो रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे प्लीज, मैं अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता इसको पीकर। हम एक और हवाले में चलते हैं, पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 14वीं आयत में। पहला सैमुएल पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। और यहां पे हम देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या बताता है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ये किसको कह रहा है? हना को कह रहा है। हना दुआ कर रही है और वो मुंह से अल्फाज अदा नहीं कर रही, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे हैं। और एली गुमान करता है कि इसने नशा किया है, और वो उसे कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। क्योंकि तू कैसे जौन सी है, खुदा से हम कलाम है, खुदा की हजूरी में है, लेकिन तू खुद नापाकी की हालत में है। अगर मैं कलाम खुदा के मुताबिक जायज होती तो एली कभी उस पर इतराज ना करता। अगर एली जो है वो खुदा का बंदा है, अगर खुदा की तरफ से मैं की इजाजत है, तो एली कभी उस पर इतराज ना करता। और हना उसे क्या कहती है? हना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तो कलाम खुदा जो है हम देखते हैं कि वो आपको बता रहा है कि जब जब आप ऐसी मैं को पीते हैं जिससे नशा, जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट है, जो कि अल्कोहलिक वाइन है, तो उससे आपको नशा होगा, और नशे की हालत में आप अपने सेंसेस को जो है वो लूज करेंगे और आपसे गुनाह सरजद होगा। हम एक और हवाले में अब नए ऐदनामे के अंदर आते हैं, क्योंकि वो लोग जो कि कलाम खुदा को कबूल करने के लिए दिल से तैयार नहीं हैं, लेकिन मजबूरन उन्होंने खुदा का खौफ रखते हुए कि कहीं उनकी
टोटली ना बिगड़ जाए वो बात, वो कहते हैं जी कि नए ऐना में से दिखाए हमें। हालांकि ये बात समझ से बालातर है कि क्या पुराना ऐनामा खुदा का कलाम नहीं है? क्या नए ऐनामे की बुनियाद, क्या रसूलों की बुनियाद, क्या चर्च की बुनियाद कलाम खुदा के मुताबिक अंबिया के सहाइफ पर जो है वो मुश्तमिल है? हम मत्ती रसूल की इंजील 24वें बाब में चलते हैं और उसकी 48 से 51वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 48 से 51वीं आयत तक। यह आपने वाकया पढ़ा होगा, सुना होगा कई मर्तबा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में यह कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये हवाला जो है ये उस वक्त का, ये जजमेंट डे का हवाला है। हम आज तो ये समझ के बैठे हुए हैं, सोच के बैठे हुए हैं कि अभी क़यामत आने में बहुत देर है, हम तौबा कर लेंगे। आज तो जो है अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लो। और मैं अक्सर जो सा है वो देखता हूं, मैसेजेस में लोग लिखे होते हैं, जिंदगी 4 दिन की है, खुल के जियो। बहुत अच्छा मैसेज है ये, लेकिन इस मैसेज पे गौर करने की जरूरत है कि अगर आपकी जिंदगी 4 रोज की है तो फिर खुलकर खुदा की इबादत में सर्फ कर दो, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के हकदार ठहरो, ना कि अपनी मुख्त से जिंदगी को गुनाह आलूदा कर लो। पहले पहले जब मैं ये मैसेज पढ़ता था तो मुझे अफसोस होता था। अब मुझे खुशी होती है कि ये जिस किसी ने भी ये मैसेज या कहावत बनाई है उसने जिंदगी की हकीकत बयान कर दी है कि आप मुख्तसर सी मुद्दत के लिए इस दुनिया में आए हैं, खुल के जो है। और इसीलिए कलाम खुदा कहता है कि अपने पूरे दिल से, पूरी कुव्वत से, पूरी जान से अपने खुदावंद खुदा की पैरवी कर, ताकि तू उसका खौफ रखे और गुनाह ना करे। तो हमारी जो 4 दिन की जिंदगी है, हम उससे अपनी जिंदगी को उसकी हजूरी में ले जाएं, क्योंकि हमें नहीं इल्म कि हमारा चौथा दिन किस टाइम पे खत्म होगा। जहन में रखिए कि आपके 3 दिन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 1 दिन है आपके पास बाकी, और उस आखिरी दिन का आपको पता नहीं है। कलाम खुदा आपको यह बता रहा है, और उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के उसकी राह ना देखता हो, आपको अंदाजा ही नहीं होगा, उस घड़ी का इल्म ही नहीं होगा, ये किसी को भी इल्म नहीं है कि कब जौन सी है जजमेंट डे आ जाएगा, हमारा हिसाब किताब का दिन सामने होगा। और अगर हम आज बुरे कामों में मुब्तला रहेंगे
شراب کو اپنے لیے جائز قرار دیں گے تو ایسی گھڑی کے مالک ہم جانتے بھی نہ ہوں گے وہ موجود ہوگا، اور کیا کرے گا وہ ہمارے ساتھ، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، اور ریاکار کی سزا کیا ہوگی؟ اسے ایسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا۔ ہمیں اچھے اور دیانتدار نوکر کی طرح اپنی زندگی ہم بسر کریں گے تو اس کا اجر اس کے برعکس ہے، اس کا اجر اپنے مالک کے ساتھ جو ان سے ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ اسی طرح ہم ایک حوالے میں دیکھتے ہیں، استثنا 21 باب اس کی 20ویں آیت میں، استثنا کی کتاب 21واں باب اور اس کی 20ویں آیت، یہ نافرمان بیٹے کے متعلق ہے، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تو شراب کیا کر دیتی ہے؟ ضدی پن آپ میں پیدا کرتی ہے۔ یہ اس کی شراب کی کریکٹرسٹک ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ شرابی کو آپ کہیں کہ چھوڑ دے، وہ کہتا ہو پاسے ہو جا۔ اس کے اندر اکڑ پیدا کرتی ہے، وہ اڑاؤ ہوتا ہے، وہ آپ سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، ضد کرتا ہے۔ اسی طرح ہم استثنا 32-33 میں آتے ہیں، استثنا کی کتاب 32واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں، یہ ہم شراب جب انسان پیتا ہے تو اس کے اندر کون سی کریکٹرسٹک آتی ہیں، یہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ استثنا کی کتاب 32واں باب اس کی 33ویں آیت، اور ان کی میں اژدہاؤں کا پس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ تو کلام خدا ہمیں یوں سکھا رہا ہے کہ جو وائن ہے، جو انٹاکسیکیٹنگ وائن ہے، جو فرمنٹڈ وائن ہے، جو الکوہلک وائن ہے، وہ پوائزنز آف دا ڈریگنز ہے، یہ زہر ہے۔ میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، میڈیکل سائنس اس کو کہتی ہے زہر ہے، آپ تھوڑی سی کوانٹٹی بھی لیں گے، یہ الکوہلک وائن ہے۔ میڈیکل سائنس اس کو آج پروف کر رہی ہے، جو کلام خدا نے ہزاروں سال پہلے آپ کو بتا دیا۔ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ شراب کیا چیز ہے، وہ آپ میں آپ کو کڑاؤ کرتی ہے، آپ کو ضدی بناتی ہے، آپ زہر پی رہے ہیں۔ اسی طرح ہم امثال کی کتاب 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور وہاں پہ کلام خدا ہمیں بتاتی ہے کہ میں امثال 20 باب اس کی پہلی آیت،
मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है। मैं जब आप पीते हैं, फर्मेंटेड वाइन जब आप पीते हैं, तो वो पी के आप मस्खरेपन का शिकार होते हैं। और शराब, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ट्रांसलेट किया गया, और ये इब्रानी ज़बान में हमने सीखा था, ये वर्ड कौन सा है? शिकार वर्ड है। और जो कोई इनसे फरेब खाता है दना नहीं, ये आपको डिसीव करती है, आपके सेंसेस को जो उनसे क्या कर देती है? मफलूज कर देती है। और आप को रात में भी रोशनी दिन की नजर आती है। आप किस तरह के शिकार हो जाते हैं? आप हाथी को भी देख के कहते हैं इसको मैं गिरा लूंगा। तो कलाम ये कह रहा है कि ये जो फरेब है, ये जो धोखा है, ये जिसको पीने से आपको हो रहा है, ये कोई दिनाई का काम नहीं है। क्योंकि हाथी को गिराने जाएंगे तो हाथी आपके लिए फूलों का हाल लेके नहीं खड़ा होगा। हम एक और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग जो कि कहते हैं कि काने गलील का जब हमने पढ़ा था फर्स्ट मिरेकल, इसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि वो कौन सी मैं मसीह खुदावन बनाते हैं, और उसमें हमने ये सीखा कि अगर मेरा और आपका खुदा जो है, वो जो पत्थर के 6 मटके हैं जो पानी से लबालब भर दिए जाते हैं, और जब उन्हें निकाला जाता है और पानी वो जो मैं बन गया था जब मेरे मजलिस को पेश की जाती है, हमने वो सीखा कि वो कौन सी मैं है। अनफर्मेंटेड वो वाइन है, जिसको गुड वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया। अगर हमने गुड वाइन की एग्जांपल्स देखी कलाम खुदा के अंदर, अगर जौन सा है सोशल ड्रिंकर्स के इस दावे को माना जाए कि मसीह खुदावंद ने पानी को एल्कोहलिक वाइन में चेंज किया, तो मसीह खुदावंद जिम्मेदार है उस शादी में उन लोगों को मस्खरेपन का शिकार होने दे रहा है। वो उनको जहर जौन सा है मुहैया कर रहा है। वो उनको जौन सा है, आपने सीखा कि वो नशे की हालत में जब जाएंगे तो वो जौन सा है फरेब का शिकार होंगे। और अगर ये सब कुछ होगा तो उन्हें क्योंकि खुद पीनी है, वो मेरे और आपके खुदा पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने गुनाह किया है। और हमने हबकूक 2:15 के अंदर भी देखा था, और हम इसके अंदर भी हम जो जाके सीखेंगे। हम देखते हैं कि शराब जौन सी है वो आपको गुर्बत का शिकार करती है। शराब आपको दौलत आपकी नहीं बढ़ाती, बल्कि शराब आपको गुर्बत का शिकार करती है। और ये कहां पे है? ये इमसाल 23-21 में हम पढ़ते हैं। इमसाल की किताब 23वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, आए मेरे बेटे तो सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। कलाम खुदा ये बता रहा है कि शराब पीने वाले जो लोग हैं वो कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी।
हम इसी तरह इसकी 29वीं आयत में जाते हैं, 23 बाब उसकी 29वीं आयत में। तो कलाम खुदा क्या सिखा रहा है? कौन अफसोस करता है, कौन गमजदा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है? वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजामे कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह दस जाती है। कलाम खुदा कह रहा है कि इवन उसके ऊपर नजर ना कर। पीने को तो और बात है, आप देख रहे हैं कि शराब जो है, कलाम खुदा क्या सिखा रहा है कि वो फई की तरह डसती है, वो मस्करेपन का आपको शिकार करती है, वो आपको जो है धोखे के अंदर लेके चलती है, वो आपके सेंसेस को जो है वो मजरू कर देती है। कलाम खुदा अब ये कह रहा है कि उस पर नजर तक ना कर। शराबी लोगों के साथ उठना बैठना जो है मना कर रही है। वो कह रही है वो आपको गुर्बत की हालत में ले जाएगी। और इसी तरह यशायाह 5:11 में है कि अफसोस उन पर जो सुबह को उठते हैं ताकि वो मैनोशी कर सकें और रात तक मैनोशी करते चले जाते हैं। बादशाहों को कलाम खुदा जो है उसने मना कर दिया कि तुम शराब नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? ताकि तुम जो रियाया कि जिस तुमने जो फैसले करने हैं, तुम्हारे फैसलों में लग्जिश ना हो जाए, तुम गलत फैसले ना कर सको। और ये आप इमसाल 31:3 में देखते हैं। इमसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 3री आयत। अपनी कुवत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को आए लमुएल, बादशाहों को मैं ख्वारी जेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकमों को शाया नहीं। अगर जमीनी बादशाह को शराब मना कर दी गई है कलाम खुदा के अंदर, तो बादशाहों के बादशाह ने कैसे इजाजत दे दी कि आप शराब नोशी करें? जमीनी बादशाह को तो मना कर दी गई कि कहीं उससे फैसले करने में चूक सरजद ना हो जाए। तो जो बादशाहों का बादशाह, शहजादों का शहजादा है, जो मेरा और आपका खुदा है, वो कैसे मुमकिन है कि वो ये आपको इजाजत दे दे जबकि शराब हम पढ़ रहे हैं कि कलाम खुदा हमें सिखा रहा है कि वो किस किस तरह से एक्ट करती है। प्रीस्ट को मना कर दी गई कि वो शराब नहीं पिएंगे। यशायाह की किताब 28वां बाब 7वीं आयत में, यशायाह नबी का सहीफा उसकी 28वां बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम खुदा में यूं सिखाता है, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गरक हैं। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग्जिश खाते हैं। प्रीस्ट को मना कर दिया गया कि तुम भी जो उनसे शराब नहीं पियोगे। आपकी जमीन को बरकत दी गई,
जब आप शराब से इज्तनाब करते हैं। दानियल नबी का आपने पढ़ा कि वो बादशाह के दस्तरख्वान पे इल्तिजा करता है कि मैं शराब नोशी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। हम एक और हवाले में देखते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। मैं देखता हूं इसको, एक मिनट। ये जी वाज 10 बाब, वाज की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। नेक बख्त है तू आए सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज्यादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं और ना इसलिए कि बदमस्त हों। यानी उन्हें कहा गया है कि वो शराब जब नहीं पिएंगे, बदमस्ती नहीं करेंगे, तो कलाम खुदा ये बताता है कि वो उनकी जमीनें जौन सी हैं वो आबाद होंगी। यसाया 28:3 में बताता है कि जो शराबी है वो कुचल दिए जाएंगे। और हम एक और आज एक खूबसूरत आयत की तरफ चलते हैं कि ऐसे लोग जो कि ये बताते हैं कि शराब सोशल ड्रिंक के तौर पर मॉडरेट, आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से खुदा के कलाम को बिगाड़ते हुए या तो कम इल्मी की वजह से या उसकी हिकमत ना हासिल करने की वजह से या अपने दिल की ख्वाहिश की वजह से, ऐसा शख्स जो ये बताता है, जो कि कलाम के बरक्स जो है वो चीज बताता है कि शराब जौन सी है वो कलाम खुदा में मॉडरेट उसका यूज दिया गया है। आए हम पढ़ते हैं कि कलाम खुदा इस शख्स के मुतालिक क्या बताता है। मीका 2 बाब उसकी 11वीं आयत। मीका 2 बाब उसकी 11वीं आयत। निकाली आपने? मीका 2:11 जो है कलाम खुदा में यूं सिखाता है, अगर कोई झूठ और बतौलत का पैरो कहे कि मैं शराब और नशा की बातें करूंगा, तो वही उन लोगों का नबी होगा। ऐसा शख्स जो खुदा की बातों का
दावा करेगा कि मैं खुदा की तरफ से हूं और वो शराब को उनके लिए जायज करार देगा, कलाम खुदा ये बता रहा है कि वो उन लोगों का नबी होगा, वो मेरा नबी नहीं होगा, वो मेरी तरफ से नहीं होगा। और आपने अक्सर कलाम सुनाने वालों को, आपकी जिनसे वाकफियत होगी या जिस चर्च में आप जाते होंगे, अगर कोई इंग्लिश चर्च है, पाकिस्तान में तो अभी तक शायद जो है ये इस पे पाबंदी, वो मजबूर हैं कि वो नहीं जो उनसे इसको कह सकते, क्योंकि कलीसिया जो उनसी है वो इसको जायज करार नहीं देगी। लेकिन अगर किसी इंग्लिश प्रीस्ट या कोई ऐसा शख्स जो ये दावा करता है कि वो खुदा के कलाम को पेश कर रहा है, तो खुदा का कलाम मुझे कह रहा है मीका नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में कि ऐसा शख्स जो है वो ना सिर्फ झूठ बोल रहा है, ना सिर्फ गुमराह कर रहा है, जब वो शराब को जायज करार देता है, वो मेरा नबी नहीं बल्कि उन लोगों का नबी है जो उसको कबूल कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा, हमने जब पढ़ा था आज से शायद 2-3 साल पहले कि फ्रूट ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स, कि आप किस तरीके से जो उनसे इनको पहचानेंगे, ये एक पहचान है जो कलाम खुदा बताता है। और आपको अंदाजा होगा कि ऐसा शख्स जो मुझे ये बता रहा है या जो ये सिखा रहा है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि वो उनका नबी है, वो मेरा नबी नहीं है। एक और आयत की तरफ हम बढ़ते हैं, हबकूक 2 बाब और उसकी 5वीं आयत और उसके बाद उसकी 15वीं आयत में हम चलेंगे। हबकूक की किताब 2 बाब उसकी 5वीं आयत को पहले पढ़ते हैं। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बेशक मुतकब्बर आदमी मैं की मानिद दगाबाज है। 2 बाब 5वीं आयत, बेशक मुतकब्बर आदमी मैं की मानिद दगाबाज है, वो अपने घर में नहीं रहता, वो पाताल की मानिद अपनी हवस बढ़ाता है, वो मौत की मानिद है, कभी आसूदा नहीं होता, बल्कि सब कामों को अपने पास जमा करता है और सब उम्मतों को अपने नजदीक फराहम करता है। ऐसा शख्स जो है, जो मुतकब्बर है, जो गुरूर करता है, वो किसकी मानिद, उसको किससे तशबीह कलाम खुदा दे रहा है? मैं की मानिद दगाबाज है। हमने जब पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, इब्रानी में और यूनानी ज़बान में जो नया अहदनामा लिखा गया और इब्रानी ज़बान में पुराना अहदनामा लिखा गया, जब उसमें इब्रानी वर्ड्स जो यूज होते हैं पुराने अहदनामे में, जिसको इंग्लिश में वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के तौर पर ट्रांसलेट किया गया और उर्दू में मैं और शराब के तौर पर ट्रांसलेट किया गया, हमने सीखे वो अल्फाज और उनके मानों को सीखा और हमने देखा कि जो याइना वर्ड है, जो कि 141 मरतबा इब्रानी ज़बान का लफ्ज है जो कि पुराने अहदनामे में इस्तेमाल होता है, वो दोनों हालतों में इस्तेमाल हो रहा है। उसको आप उसी सूरत में सीख सकते हैं जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर उसको देखेंगे, क्योंकि वो ग्रेप जूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, अनफर्मेंटेड वाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेड वाइन के लिए जब इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे
وہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے ورڈ. ہم اسی کی 15ویں آیت حقوق 2 باب اس کی 15ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر افسوس. کلام خدا بتا رہا ہے اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے. وہ ٹو دیٹ پرسن. اگر سوشل ڈرنکرز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں ماڈریٹ وائن کی اجازت دیتا ہے اور مسیح خداوند کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے پانی کو میں تبدیل کیا اس لیے ہمیں اجازت ہے کہ میرے خدا نے جب بنا دی تو مجھے اجازت ہے، تو کلام خدا تو یہ بتا رہا ہے کہ افسوس اس آدمی پر جو میں نہ صرف بنائے بلکہ اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کرے. تو اگر وہ مسیح خداوند کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہ صرف بنائی ہے بلکہ اس نے آگے اس میں کو بنانے کے بعد ڈسٹریبیوشن میں بھی اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب آپ بنائیں گے تو تبھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی نا. تو مسیح خداوند پر وہ کلام خدا کے مطابق افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ افسوس ہے مسیح خداوند پہ کہ اس نے ایسا کام کیا ہے. اور یہی جب چیز ہم نے سیکھی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ مسیح خداوند جب پانی کو میں تبدیل کرتے ہیں تو اس میں کے لیے ورڈ جو یوز ہو رہا ہے، اس ورڈ کو جب ہم نے سیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی طور پر وہ میں جو ہے وہ نشے والی میں نہیں ہے، وہ ایک تازہ جوس ہے، تازہ گریپ جوس کو جو ان سے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور اسی لیے اس کے لیے ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ گڈ وائن کے طور پر یوز ہوتا ہے. وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے خدا کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں. مسیح خداوند تو خود جو ان سے ہے وہ نشہ کرنے کو منع کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے نشے کی ہمیں اجازت دی ہے، مسیح خداوند نشے سے منع کرتا ہے خود. لوکا رسول کی انجیل 21واں باب اس کی 34ویں آیت میں ہم چلتے ہیں. لوکا رسول کی انجیل 21واں باب اور اس کی 34ویں آیت. بس خبردار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں میں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں پڑے. جس مسیح کو لے کر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو خود فرما رہا ہے، وہ آپ کو وارن کر رہا ہے، وہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. جب انہیں کوئی مسیح سے کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر پالوس رسول کو پکڑتے ہیں، کسی شاگرد کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ادھر ہی سے ہمیں کوئی ایسی آیت ہمیں مل جائے. مسیح خداوند سے شریعت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا، اور وہ ٹائم بتا دیتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک شوشہ یا ایک نقطہ ہرگز نہیں ٹلے گا. وہ ٹائم بتا دیتا ہے کہ کب تک شریعت جون سی ہے وہ قائم اور دائم ہے. اب جب انہیں یہاں سے شریعت کے متعلق نہیں ان کے مطابق ملتی تو وہ پالوس رسول
के साथ जो उनसे उसके कलाम को जो है आयतें उसकी पेश करते हैं। और पौलुस रसूल कहता है मैं शरीयत का पाबंद हूं। पौलुस रसूल ही जो है बयान करता है कि मैंने सारी उम्र शरीयत की पाबंदी की है। हम देखते हैं पौलुस रसूल ड्रिंकिंग के मुतालिक क्या बता रहा है। हम ये बस चंद ही जो उनसे हवाले देखेंगे आज, और इसके बाद इसको आज खत्म करेंगे, और फिर हम चंद सिर्फ 5 मिनट्स और होंगे। पौलुस रसूल जो है रोमियो खत 13 बाब 13वीं आयत में हम आते हैं। रोमन्स 13:13 में हम आते हैं। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़िनाकारी और शहवत परस्ती से, ना झगड़े और हसद से। पौलुस रसूल तो आपको साफ बता रहा है कि नशाबाजी से आपको परहेज करना पड़ेगा। रोमियो 13:13 जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़िनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। और इसी तरह पहला करंथियों 6:10 में हम आते हैं। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत। ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। कौन नहीं जाएंगे खुदा की बादशाहत में? ये लोग। इसे हम ऊपर वाली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? फरेब ना खो, ना हरामकार खुदा की बादशाह के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। तो पौलुस रसूल भी आपको यही बता रहा है, क्योंकि पौलुस रसूल खुदा के रूह की हिदायत से बता रहा है, और खुदा के कलाम में आप सीख रहे हैं कि शराब और मैं जो है वो आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां जन्म देती है। मुकाशवे की किताब को अगर आप जाएं तो वहां पे भी जो है इसका जिक्र है, शराब को खुदा के दुश्मन से तशबीह दी जाती है। मुकाशवा 14 बाब उसकी 8वीं आयत में। और हम पौलुस रसूल का एक और हवाला पढ़ लेते हैं इसको खत्म करने के लिए। पहला करंथियों 5:11वीं आयत में। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हराम का या लालची या बुत प्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। पौलुस रसूल तो इतनी सख्ती से जो उनसे आपने कलाम खुदा में पहले पढ़ा था कि शराबियों के साथ मेल मिलाप ना रखें, उसी बात को पौलुस रसूल अब पहला करंथियों 5 बाब उसकी 11वीं आयत में बता रहा है कि ऐसे शख्स के साथ सोबत तक ना रखना। पीना तो दरकिनार, उसके साथ सोबत तक ना रखना कि कहीं आप उसकी सोबत की वजह से कमजोरी में आप पढ़कर गुनाह में ना चले जाएं। हम देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर, जब आप इसके मेडिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ये जो वाइन है या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक शराब है, तो इसका जो मेन जो एल्कोहलिक कंटेंट है वो इथेनॉल होता है,
थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। इथेनॉल की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फ्लेमेबल है, ये आपको आग, जिस तरह आपको बर्निंग सेंसेशन होगी जब आप इसको अपने अंदर उंडेलेंगे, तो ये आग जो सी है, इसलिए वो कहते हैं कि सांप की तरह फई की तरह डसती है। ये अंगारे की मानिंद है, बर्निंग इसका टेस्ट है, और इसका जायका जो उनसे है, जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एक यानी जूस नहीं है, ये आपको जूस से हटकर एक चीज जो उनसे इसका टेस्ट आपको, जो फर्स्ट टाइम ड्रिंकर होगा उसको पता चलेगा। जो तो आदी हो गया वो तो कहेगा हो लिया हो। एंड इट इज पॉइजनस टू ह्यूमन बॉडी। ये मेडिकल साइंस प्रूव कर रही है। इट इज पॉइजनस टू ह्यूमन बॉडी वेदर इट इज कंज्यूम्ड इवन इन स्मॉलर क्वांटिटी। या मेडिकल साइंस इसको ब्रेन को पॉइजन करती है। जी प्रूव कर रही है। इसमें मैं मेडिकल में इसके नहीं जाना चाह रहा ज्यादा। ये आपको क्या कर रही है, इथेनॉल, अगर इस इथेनॉल जो अल्कोहल है कंटेंट उसका, अगर ये 5% आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाए तो आपकी मौत वाकई हो सकती है। ये आपके बिहेवियर को चेंज करती है। ये मेडिकल साइंस की बातें कर रहा हूं, कलाम खुदा से तो हमने बातें देख ली हैं। ये आपके नजर को धोखा देती है, इंपेयरमेंट ऑफ विजन करती है, और ये आपने देखा था कि आपको फ्रेब का शिकार करती है। ये कलाम खुदा ने हजारों साल पहले चीजें बता दी, आज मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रही है। ये आपको अनकॉन्शियस कर देती है। हम आज कलाम खुदा को यहीं पे खत्म करते हैं। हम इसका अगला हिस्सा जो उनसे है, इसके रूट वर्ड में हम आएंगे, ब्रीफली इसको सीखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। हमने जब नए नामे में इस वर्ड को सीख रहे थे और पुराने नामे से सीख रहे थे, वहां पे हमने देखा था, क्वेश्चन एक आया था कि क्या कहते हैं, ये क्यों फिर ये वाइन ही जो है, जब ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, अल्कोहलिक कंटेंट भी और अनफर्मेंटेड वाइन भी यानी ग्रेप जूस भी जो है उसमें मौजूद है, तो फिर ये क्यों एक ही वर्ड में ट्रांसलेट हुआ? और उस वक्त भी इसका जो है जवाब दिया गया था। हम इसको मजीद तफसील के साथ देखेंगे कि पुरानी डिक्शनरीज में जो उनसे इस वर्ड को जब लिखा जाता था तो उस वक्त क्या मतलब था, उनके हवाले जो हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद हम जूश एनसाइक्लोपीडिया में देखेंगे कि वहां पे इसका क्या जिक्र है। उसके बाद हम जो उनसे जो दो डिफरेंट वाइन्स हैं, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। हम कहते हैं जी ये दो किस्म के वाइन्स हैं, तो वो कौन सी दो किस्म की वाइन है, हमने पुराने ऐनामे और नए ऐनामे में दोनों में हमने देख लिया था। इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली हम इसको सीखेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। और जो है हम इसके अंदर जो और चीज देखेंगे, वो जो एक दूसरा एक इतराज है, काने गलील को तो हमने देख लिया है। अब शायर रुबानी को जो है हम देखेंगे कि क्या उस वक्त मैं जो इस्तेमाल हुई वो कौन सी थी, इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे, अक्सर लोग कहते हैं, यहूदी इतराज करते थे कि मसीह खुदावंद क्या है, खाऊ और शराबी। इसको हम थोड़ा सा जो है उसके अंदर सीखेंगे कि ये वो जो कहते थे वो क्या था, क्या मेरा और आपका खुदा वाकई वो शराब उसने पी। हम जो उनसे ये भी सीखेंगे कि जब रूल कुदस नाजिल होता है 120 की जमात पर, शागिर्दों पर, तो उन्हें कहा जाता है कि ये नशे की हालत में है। क्या वाकई वो नशे की हालत में थे, ये भी हम सीखेंगे इसमें। फिर हम एक अक्सर जो उनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जी पालूस रसूल का आपने देख लिया कि उसने उसकी तालीम क्या है वाइन के बारे में। वो कहता है कि इनके साथ बैठो तक ना, इनकी सोबत में रहो तक ना, खाना पीना तो लहदा बात है, इनके साथ ताल्लुक ना रखो। वो बताता है कि
ایسے لوگ خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ وہ یہ ایک حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پالوس رسول تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم سیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بریفلی ہم سیکھیں گے، پورے کا پورا نہیں دیکھیں گے۔ ہم ایک اور چیز اس کے اندر سیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیکنز کو جو ہے کہا گیا ہے، ایلڈرز اور بشپ کو تو کہہ دیا گیا انہیں شراب نہیں دینی، پر ڈیکنز کو کہا گیا ماڈریٹ دے دیں۔ ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے حضوری میں آئیں اور اس کی حضوری میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے جو وہ حکمت دینا چاہتا ہے، جو اس کے کلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا چاہتی ہے، اس کو قبول کریں، اپنی زندگیاں اس میں گزاریں۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس ہے خداوند خدا کا آدم مطلب باپ دیت کو اسلام سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو رہنمائی نگہبانی کرنے والا باپ ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو آسمان زمین کا مالک خالق دیت کو اسلام دی سادہ ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خداوند، جو تو نے آج کا دن ہمیں بخشا کہ تیرے پاک حضوری میں آئیں، تیرے پاک کلام کو سنے سیکھیں سمجھے اور اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں خداوند۔ ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں خداوند، تو ہمیں برکت کو طاقت بخشا خداوند، تاکہ ہم گناہ کے دلدل میں دوبارہ نہ دھنس جائیں خداوند۔ تیرے پاک نام کو سن کر اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے خداوند۔ تو رہنمائی نگہبانی کرنے والا باپ ہے، تیرا شکر ہے خداوند۔ اور تیرا پاک صبر ہے، جہاں کی تیری باپ بات ہو خاص برکت ہو، سننے سنانے والوں کے پیارے پاک کلام فیض یاب کر، ایک ایک کو چھو خداوند، ایک ایک کو برکت بخشا خداوند، ایک ایک کو قوت دے خداوند۔ تمام بیماریاں، پریشانیاں، استانیاں ملستانیاں، آفتیں، برے لوگ، برے خواب و خیالات تیرے پاک نام سے خداوند جاتے ہیں خداوند۔ ایک ایک کی پریشانیاں خداوند تیرے پاک نام سے دور ہو جائیں خداوند۔ تو برکتیں اپنے وعدے کے مطابق خداوند دیتا ہے خداوند۔ تو ہمیں خداوند توفیق بخش، تیرے پاک نام کو سنے سیکھیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ سب مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں خداوند تیرے پیار بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان، تیری بات چاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصور معاف کیا تو سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ کرتے رہے، آمین۔